Now we will see grammar questions. Read these questions from the page. Father, dear father, but in your departmental store, do you apply Pythagoras theorem or Newton's laws of gravity? क्या आप अपने डिपार्टमेंटल स्टोर में पाइथागोरस थ्योरम और न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटी क्या अप्लाई करते हो? तो उसका आंसर है नो. It is impossible. The world has turned topsy-turvy in just 70 years. What answer does the writer expect? First or second? जो वर्ल्ड है पहले से बहुत कुछ चेंज हो गया है, तो आप क्या आंसर करते हो? यस. इसका आंसर है यस. और make a list of the other questions in the lessons and try to decide how they should be answered. Notice that all the questions being with is, are or do. Also that they are answered to be with yes or no. Notice करो कि जो सारे questions है वो is और are और do से हुए हैं, being with, और also they had also that they are to be answered with yes or no, और उनको जो है yes और no में ही आंसर करना है. तो हाँ, father is fibbing. Yes. Do you know what she said? आपको पता है उन्होंने क्या किया? Are we living? पापा हम लोग क्या जी रहे हैं? जो उन्होंने बोला कि उस तरीके से हमें do और I और are लगाना है, तो हम इसका ये आंसर है. Make sentences using the given phrases and is, are or do, does according to what given in the brackets. Example, Manohar ill. तो is Manohar ill? क्या मनोहर जो है वो बीमार है? तो हम लोग ने आगे क्या लगाया? is लगाया. वैसे ही हम जो है यहाँ एक्सरसाइज है वो देखेंगे. Dash you going to the market. क्या आप मार्केट जा रहे हो? तो क्या are you going to the market? इसमें are लगेगा. Dash the teacher in the class. क्या टीचर dash टीचर क्लास में, तो is the teacher in the class. Dash you likes mangoes. Do you like mangoes? Dash your mother cooking. Is your mother cooking? क्या आपकी मम्मी खाना बना रही है? Dash your brother eats eggs. Does your brother eat? क्या आपका भाई है वो एग खाता है? Dash you know Sanskrit. Do you know Sanskrit? क्या आपको संस्कृत पता है? आंसर्स भी दिए हुए हैं इधर. Third, there are other ways of asking questions also. Your questions can be with whom, the, whose, what and which. उस क्वेश्चंस पूछने के लिए और भी अदर्स वेज है. who किसने, whose, what and which. Who and whose are used when you ask questions dealing with the people. who और whose कब यूज होता है? जब आप कुछ डील कर रहे हो पीपल के साथ उस समय. Who took my pen? किसने मेरी पेन ली? Whose books are these? ये किसकी बुक्स है? What is used being questions which deal with the persons as well as things. person के साथ भी उसको यूज कर सकते हैं और things के साथ भी उसको यूज कर सकते हैं. What time is it? टाइम कितना हुआ? What do you say? आप क्या बोल रहे हो?
आप क्या बोलोगे? Which is used to being questions about persons or things where the choice is limited. Which कब used होता है? जब person और things के बारे में क्वेश्चन पूछा गया पर चॉइस जो है वो लिमिटेड रहती है. Which school did he go to school? वो कौन से स्कूल जाता है? Which of these two boys is better swimmer? इन दोनों में से कौन सा स्विमर कौन जो है स्विमिंग अच्छा कर लेता है? The answer of these questions are framed differently from those in the earlier groups of questions that you read about in the previous exercise. Questions that begin with WH words needs a different kinds of answer. Example: Who wrote the letter in the lessons? Father, dear father. ये इसमें लेटर किसने लिखा? तो राहुल ने लिखा था. राहुल जो है उसने लिखा था इसमें. What did he write about? उसने क्या लिखा था? He wrote about his performance in the examinations. उन्होंने जो एग्जामिनेशन में परफॉर्मेंस दिया था उसके बारे में लिखा गया है. Which person attitude to the life did he like better in his mother or his grandmother? तो किसका एटीट्यूड वो जो है राहुल को अच्छा लगा, अपनी माता का या अपनी दादी का? तो उनको जो है अपनी दादी माँ का अच्छा लगा. Now fill in the blanks in the following sentence with whom, what and which. तो हमें जो है ये fill in the blanks करना है किसके साथ? Who, what and which. तो dash is that man. Who is that man? Who is that man? Dash books do you want? The Tale of Two Cities or a David Copperfield? Which books do you want? आपको कौन सी बुक चाहिए? The Tale of Two Cities or a David Copperfield? Two Cities और David Copperfield, इन दोनों में से आपको कौन सी चाहिए? What is your name? आपका नाम क्या है? Which time it is? या what time it is, दोनों में से what time it is, कौन सा टाइम है? Dash met him. Who met him? उनको कौन मिला? Dash one of them won the tennis match bigger and or a smack press. Which one of them won the tennis match? उनमें से कौन जीता? Fifth, other questions words in which words which you started questions are why, when, where and how. Why कैसे, when कब, where कहाँ और how कैसे. Why means for what reasons is usually answered which because. Why का मतलब क्या है? For what reason, कौन से रीजंस की वजह से. वो यूजुअली बिकॉज से आंसर रहता है. Why are you late? आप लेट क्यों है? Because I miss the bus. Why कब यूज होता है? जब कोई रीज़न रहा हो और कब तो आंसर. तो ये यूजुअली जो वाई है वो बिकॉज से ही आंसर करता है. वेयर मीन्स वेयर का मतलब क्या? एट व्हाट टाइम, कौन टाइम पर है. व्हाट डू यू गेट, व्हेन डू यू गेट अप एट 7 AM. आप कब जागे? तो कब? 7 बजे. वेयर मीन्स एट व्हाट प्लेस, कौन से प्लेस के बारे में. तो वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं? तो इन दिल्ली. हाउ कैन बी यूज टू आस्क अबाउट अ मेथड के बारे में हाउ जो है वो यूज होता है. फॉलोड बाय अ नाउन. हाउ टॉल आर यू, आप कितने लंबे हो. आई एम 5 feet 3 inches टॉल, मैं 5 feet 3 inch लंबा हूँ. विथ मच, मैनी, हाउ मैनी ऑफ यू आर कमिंग टुमारो, आप कितने लोग कल आ रहे हो. 3 of us, हम लोग 3 आ रहे हैं. With an adverb, how fast does he drive? Not very fast. Adverb के साथ यूज करें तो वो कितना तेजी से चलाते हैं गाड़ी, वो कितना तेजी से ड्राइव करते, तो वो उतना ज़्यादा तेजी से ड्राइव नहीं करते. Now fill in the blanks using why, where, when and how. हम लोग why
वेयर और व्हेन और हाउ यूज करेंगे। डैश वर यू एब्सेंट यस्टरडे। तो हम लोग देखेंगे इसका आंसर, व्हाई यू वर एब्सेंट यस्टरडे। आप कल छुट्टी पे क्यों थे। डैश विल यू कम टू माई हाउस। तो व्हेन, हाउ और व्हाई, कैसे, कब और कब आओगे। डैश आर यू गोइंग। तो वेयर, हाउ, व्हाई, व्हेन ये सब लगेंगे, कैसे आप आओगे। डैश आर यू सो टायर्ड टुडे। क्या आप थक गए हो। तो व्हाई, क्यों, आप क्यों थक गए। व्हाई आर यू सो टायर्ड टुडे, आप इतना आज थक कैसे गए। डैश शैल आई मेट यू। तो व्हेन, हाउ, वेयर और व्हाई ये सब में से कोई भी लगेगा, सब कोई भी इस्तेमाल हो सकता है। वेयर शैल आई मीट यू, वेयर शैल आई मीट यू, व्हेन शैल आई मीट यू, हाउ शैल आई मीट यू, मैं कैसे मिलूँ, कब मिलूँ, कहाँ मिलूँ, ये भी सब यूज्ड होगा। डैश कैन वी गो फॉर शॉपिंग। वेयर कैन वी गो फॉर शॉपिंग, व्हेन कैन वी गो फॉर शॉपिंग, हाउ कैन वी गो फॉर अ शॉपिंग। व्हेन, हाउ और वेयर। Now make questions using which, where, what, who, which will fit the underlined words in the following answer. I have been to the zoo. तो इसका आंसर होगा Where have you been? आप कहाँ थे। Where have you been to the zoo? Amit and Amar are sitting under the people tree. Amit and Amar are sitting. Where Amit and Amar are sitting? वो लोग कहाँ बैठे हैं। My name is Mohinder. What my name? What is your name? आपका नाम क्या है। I like this book better than that one. Which book do you like better? आपको कौन सी, अब हमें क्वेश्चन पूछना है, इसको क्वेश्चन मार्क करना है, तो आपको बुक कौन सी अच्छी लगी। सुलेखा ate the cake. Who ate the cake? किसने एक केक है वो खा गया। I will give you a brown shirt. तो मैं आपको ब्राउन शर्ट दूंगा। तो which shirt will you give to me? आप कौन सी शर्ट मुझे देंगे। Fill in the blanks. Ravi, this shirt is very smart. Dash did you buy it? रवि को पूछते हैं कि ये शर्ट बहुत अच्छी है, आपने कहाँ से खरीदी। Where did you buy it? Ravi, Alok, in a shop of a mall road. Ravi, dash shop was it modern store or Jagannath's? तो dash shops, which shops? कौन सी शॉप आएगी। Alok, modern store, but there is another shop on MG Road which is just a good. Ravi, dash it is it name MG is very long dash exactly it is। तो what और where or do। What do you know tourist Alok dash do you know tourist hotel, it is the next door। Do you know what it is then MG Road is very long, where exactly it is। what either where or either do you know the tourist hotel, it is next door and it is called Uttam Singh Dugal and Sons। 10th, where the mind is without fear। जो हमारा माइंड है वो बिना फियर के कहाँ रहता है।
दिस पोएम वॉज रिटन व्हेन द ब्रिटिश रूल्ड अवर कंट्री. ये पोएम तब लिखी गई थी जब ब्रिटिश जो है हमारी कंट्री को है रूल कर रहे थे. वी वर स्लेव्स टू अ फॉरेन पावर. हम लोग उनके नीचे दबे हुए थे, उनका पावर था, इस वजह से. रविंद्रनाथ टैगोर, द ग्रेट इंडियन नेशनलिस्ट एंड अ विजनरी, वांटेड इंडिया टू अवेकन द ब्राइटेस्ट डाउन ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी एंड अवर मेंटल चेंज. उनको वो जो ग्रेट नेशनलिस्ट थे और विजनरी थे, जो इंडिया को चाहिए था उनको ब्राइट अवेकन फ्रीडम के लिए. रीड द पोएम aloud once. Read the poem aloud once, then read it silently. It will be a good idea to memorize the poem. जो पोएम है वो बहुत ज़ोर से पढ़ो और बहुत शांति से पढ़ो और अच्छी आइडियाज़ लाओ, मेमोरीज लाओ. Where the mind is without fear and the head is held high, where the knowledge is free, where the word has not broken walls. तो ये बोल रहे हैं कि हमारा जो माइंड है वो कहाँ बिना डरे रहेगा. तो क्या और कब हम अपना जो सर है वो उनके नीचे जो है हम लोग दबे हुए हैं, तो हम लोग बिना डरे या बिना वो किए हमारा जो सर है गर्व से कब ऊपर करेंगे. Where the knowledge is free, where the world has not been broken up into the fragments by narrow domestic walls. तो जो हमारा जो वर्ल्ड है वो एक टुकड़ों में बढ़ गया है और ये जो डोमेस्टिक वॉल्स है वो जो हमारे पे डोमेस्टिक जो वो चला रहे हैं तो वो ये ब्रोक हो गया है हमारा वर्ल्ड और ये टुकड़ों में बढ़ गया है. वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ द ट्रूथ. तो ये जो वर्ड्स है ये बहुत ही गहराई से हमारे ये सच्चाई है और ये जो सच्चाई है वो कहाँ से आएगी. Where tireless striving stretches its arms towards perfections. जब हम लोग स्ट्राइविंग कर रहे होंगे तो जो हम लोग ने जो मेहनत की है वो हमारे जो आर्म्स है तो वो परफेक्शन की तरफ कैसे जाएंगे. Where the clear streams of reason has not lost its way into the dearest deserts and sands of dead habits. तो जो हमें जो क्या है वो जो रास्ता मिल रहा है, हमें जो स्ट्रीम्स ऑफ रीजन्स है वो जो क्लियर जो रास्ता है वो गुम हो गया है और वो कहाँ है तो डियरी डेजर्ट्स उनके बीच के जो है उसमें से जा रहा है. वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय द into ever winding through and actions into that heaven of freedom, my father let my country awake. तो ये जो माइंड है वो कहाँ लीड कर रहा है, कहाँ फॉरवर्ड आगे जो लीड कर रहा है. तो उनको सारे जो थॉट्स है उनको सोचना पड़ता है, वाइंडिंग करना पड़ता है, उनका एक्शंस जो है. तो कब हमें इतनी आरामदायक हेवन जैसा हमें फ्रीडम मिलेगा. और मेरे जो पापा है उनको जो है ये कंट्री को अवेक करने दो. अवेयरनेस करना मतलब जो है उनको समझाने दो, अवेयर करो कि ये मत ऐसा करो, ऐसा मत करो. और ये रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर. रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये लिखा गया है. नाउ वी विल सी द ओवरऑल क्वेश्चंस. हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब्स हेवन ऑफ द फ्रीडम. हेवन ऑफ द फ्रीडम है वो पोएट ने कैसे डिस्क्राइब किया है, उसका आंसर है where head is held high, knowledge is free, where people are open minded and rational. जब अपना जो सिर है, अपना सिर जो है वो कहाँ ऊंचा रहेगा, कब हमें नॉलेज जो है वो हमें फ्री एजुकेशन मिलेगा. और वेयर पीपल आर ओपन माइंडेड एंड रैशनल. कहाँ जो आदमी लोग हैं वो कहाँ है जो ओपन माइंडेड हो और रैशनल हो. What does the poet addresses as thee and my father. पोएट जो है वो एड्रेस क्या करते हैं thee को, तो गॉड, thee को गॉड बोलते हैं. Pick out metaphors and smiles from the lines given below. हमें मेटाफोर्स और लाइंस को ढूंढना है from the lines below. जो लाइंस थी, wind was a torrent of darkness, ये मेटाफोर है. रोड वॉज अ रिबन ऑफ मूनलाइट. विंड वॉज टॉरेंट ऑफ डार्कनेस था पूरा और रोड था जो मून का जो रिबन होता है वैसे रोड वॉज रिबन्स ऑफ मूनलाइट. मूनलाइट के रिबन में
The ship went down like lead. I passed like night from the land to land. तो स्माइल में क्या आएगा? स्माइल, ये मेटाफोर था, ये स्माइल था, तो शिफ्ट एज ड्रीम्स, ड्रीम्स की तरह शिफ्ट हुआ. शिप वेंट डाउन लाइक लीड, शिप जो है वो लीड की तरह गई. आई पास लाइक नाइट, मैं नाइट के जैसा पास हुआ.